Hello students, this is the third part of the video in the kingdoms of Fool. In previous two parts of the video, we have studied that a thief was killed by the falling of the wall while he was burgling a merchant's house, and his brother just approached the king for the punishment of the wrongdoer. And in this process, so many people were called. At first, a merchant's house, whose house was burgled by the thief, and then bricklayer, after that dancing girl, and dancing girl just transferred the blame on goldsmith, and again goldsmith just transferred the blame on the merchants. हम लोगों ने देखा कि ब्लेम गेम चलते रहा और फाइनली ये ब्लेम किस पे आया? मर्चेंट्स पे। और किंग ने कहा, इनफैक्ट मर्चेंट्स पे नहीं आया, मर्चेंट्स के फादर पे। तो राजा ने कहा कि सिंस मर्चेंट्स को अपने फादर से सारी प्रॉपर्टीज़ मिली है, इसलिए उसने जो कुछ भी गलत किया उसकी पनिशमेंट भी उसी को मिलेगी। और फाइनली क्या हुआ कि एक स्टिक बनाया गया जिस पर मर्चेंट्स फिट नहीं बैठ रहा था। शी वॉज टू थिन फॉर द स्टिक। और तब राजा ने कहा कि किसी ऐसे पर्सन को लाया जाए जो स्टिक के लिए फिट हो, मतलब उसको प्रॉपरली उस पर एग्जीक्यूट किया जा सके। और इसलिए सैनिकों को भेजा गया किंगडम में टू फाइंड आउट अ सुटेबल पर्सन फॉर द स्टेक, एंड दे फाइंड हुम। वो उसी डिसाइपल को ढूंढे जो फर्स्ट टाइम अपने गुरु के साथ आया था, एंड ही वॉज कॉट। सी what was the reaction of the disciple on that? He just told, he started to praise, what have I done wrong? वो बोलने लगा कि मैंने क्या किया है? What have I done wrong? I'm innocent, I'm a sannyasi, he cried. वो चिल्ला के बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, and obviously he did nothing. And this is the reason you might have remembered that his guru warned him earlier, and he just told him that they must leave the place because it was the kingdom of fools. But at that time disciple was not ready to move, and he just stayed here on the same place because he was greedy and he wanted good and cheap food. That may be true. जब उस डिसाइपल ने कहा कि he hadn't done anything wrong, he was innocent because he was a सन्यासी। तो सैनिकों ने कहा, बैलिफ ने कहा कि हो सकता है ये सच हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। बैलिफ ने कहा कि सही बात है, हो सकता है कि तुम क्या हो, रॉन्ग डूअर नहीं हो, यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, माइट बी पॉसिबल दैट यू आर इनोसेंट ऑल्सो। लेकिन वो लोग सिर्फ उसे क्यों पकड़ रहे हैं? बिकॉज इट वॉज द रॉयल डिक्री कि दे हैव टू फाइंड अ पर्सन हु वाज suitable to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. ऐसा कहकर वो लोग उसे कहाँ पे ले जा गया? जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया जाना था, यानी उसको मारना था। Sorry students. At that time he remembered his wise guru's words. और उस समय उसे अपनी गुरु की बात याद आई। This is a city of fools, as his guru told him at the very beginning that it was the kingdom of fools, and he couldn't predict what they will do next. You don't know what they will do next. It was the statement of his guru. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. और तब क्या हुआ, जब वो उसे while he was waiting for death, जब वो इंतज़ार कर रहा था कि अब उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, he prayed to his guru in his heart. उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया, उनसे प्रे किया उसे सेव करने का, asking him to hear his cry wherever he was. The disciple just prayed his guru and just requested him to save him wherever he was. The guru saw everything in a vision. गुरु ने सारा कुछ देख लिया because he had magical powers. उसके गुरु के पास magical powers थी.
He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. His guru had a magical powers and because of that वो क्या देख सकते थे? Everything in a vision. He had magic powers, he could see far and he could see the future as he could see the present. सारा कुछ equally वो देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple और उसे बचाने के लिए तुरंत से वहाँ पहुँच गए. Who had got himself into such a scrape through love of food. जो उसे बचाने के लिए पहुँच गया, जो अपने किस चीज़ की वजह से, उसे खाने से इतना प्यार था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ा था. So his guru arrived him to save him. As soon as he arrived, जैसे ही उसके गुरु वहाँ पहुँचे, as soon as, just as his guru arrived, he arrived. Here he refers to whom? Guru. He scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचे वो उसे डांटने लगे. He started to scold him and told him something in a whisper. Whisper का synonyms क्या होता है? आप synonyms देख लो. एक हो जाएगा mutter और दूसरा हो जाएगा murmured. उन्होंने डांटा और उसके बाद उसके कान में जाके कुछ whisper किया. Whisper word यूज़ करते हैं when we spoke in a low voice. Then he went to the king and addressed him. उसके बाद वो राजा के पास गए और राजा को जाके उन्होंने क्या एड्रेस किया? सी, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल. और जाके बोला कि वाइजेस्ट ऑफ किंग. इट्स रियली एन आयरनी और सटायर आप बोल सकते हो, क्योंकि गुरु ने राजा को क्या कह के एड्रेस किया? वाइजेस्ट ऑफ किंग्स. बट द रियलिटी वॉज समथिंग एल्स. रियलिटी क्या है कि ही वॉज द फूलेस्ट ऑफ किंग. ओके. और पूछा कि हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु. थैंक गॉड, कम से कम इतनी उसके पास समझ थी. सो द किंग टोल्ड द गुरु, द किंग टोल्ड दैट गुरु, ऑब्वियसली गुरु इज़ ग्रेटर, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है. व्हाट डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? एंड देन द किंग आस्क्ड गुरु द रीज़न ऑफ आस्किंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. तब गुरु ने कहा कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द किंग्स क्वेश्चन कि वाई ही वॉज आस्किंग दैट, इसका जवाब देने की जगह पर उन्होंने कहा द गुरु रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट हिम द स्टेक फर्स्ट. कहा कि पहले गुरु को एग्जीक्यूट किया जा. पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. नॉट ओनली दिस, द गुरु टोल्ड किंग दैट ही मस्ट बी a स्टेक फर्स्ट एंड हिज डिसाइपल आफ्टर हिम. नेक्स्ट, when the disciple heard this, जब disciple ने ये बात सुनी, see what was his reaction. Heard this, he understood and began to clamor. Clamor means मांग करने लगा. What he said? Me first, me first. Means the disciple told that no, disciple must be executed first and not his guru. बोलने लगा कि नहीं, पहले तो उसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ना कि उसके गुरु को. You brought me here first, put me to that first, not him. डिसाइपल ने कहा कि आप लोग मुझे पहले लाए हो. द डिसाइपल, यहाँ यू किसको रेफ़र कर रहा है? बैलिफ को और किंग को. मी रेफ़र कर रहा है डिसाइपल को. डिसाइपल ने कहा नहीं, आप लोग मुझे यहाँ पहले लाए हो, सो एट फर्स्ट आई मस्ट बी पुट टू दैट, मुझे पहले मारना होगा आप लोगों को. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. और उसके बाद गुरु और डिसाइपल के बीच में क्या शुरू हो गया? फाइट शुरू हो गया अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि किसे पहले मरना है. नहीं, किसे पहले मरना नहीं है. दे वांटेड टू गो फर्स्ट, दे वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. पजल्ड मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज गोइंग ऑन. ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू डाई? We chose him because we needed a fat man for the stake. राजा ने कहा, the king asked Guru, what was the reason why he wanted to die. राजा ने पूछा किससे? गुरु से, कि why he wanted to die, वह क्यों मरना चाहता है. And further he just gave the reason to Guru to bring disciple to death. और कहा कि क्यों उसे लाया गया है. राजा ने बताया कि
your disciple was brought here because they needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. Then Guru just told, You shouldn't ask. Here you refer to the king. गुरु ने कहा कि आपको ऐसा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना चाहिए, पहले आप मुझे मारो. Means put me to death first, replied the Guru. Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो राजा समझ गया कि there is some mystery in this kind of behavior. तो उसने बोला भी कि no, there is some mystery. यहाँ पे कुछ न कुछ mystery है. As a wise man, you must make me understand. और आप बहुत wise हो तो प्लीज़ मुझे explain करो. Then the Guru agreed at the condition. And what was the condition? Condition was कि गुरु किंग को रीज़न तभी बताएंगे if the king agreed to put him to death first. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. गुरु ने पूछा कि क्या आप मेरे से प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे पहले मौत दोगे? Will you? The Guru asking if he would promise him to put him to death if he told him. The king gave him his solemn word. Solemn means serious word. कहा कि ठीक है, means he promised him. The Guru took him aside. उसके गुरुजी उसको एक तरफ ले गए. Means उसके गुरुजी means disciple के. Took him aside out of the servants' earshot. ऐसा दिखाया कि वो उन लोगों को नहीं चाहते कि वो लोग इस बात को सुने. Out of the servants' earshot and whispered to him. और राजा को बोला, Do you know why we want to die right now? क्या आपको पता है हम लोग अभी तुरंत क्यों मरना चाहते हैं? The two of us. हम लोग means the Guru and disciple. We've been all over the world. हम लोग सारी दुनिया घूम चुके हैं. We've been all over the world, but we've never found a city like this or a king like you. लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा शहर नहीं मिला है जो इस शहर के जैसा हो और ना ही आपके जैसा राजा. इतना मूर्ख उसने नहीं कहा था, ये मैं बोल रही हूँ. That stake is the stake of the God of justice. और जो स्टेक है जिस पर किसी को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा फर्स्ट टाइम, ये क्या है? गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है. इट्स न्यू. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. इस पर किसी क्रिमिनल को अभी तक नहीं मारा गया. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी जिसको भी इस स्टेक पे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका जन्म फिर इस कंट्री के राजा के रूप में होगा. And whoever goes next will be the future minister of this country. और उसके बाद और सेकेंड पर्सन जो इस पे मरेगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो इस कंट्री का मिनिस्टर होगा. एंड देन गुरु टोल्ड किंग दैट वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. उन्होंने कहा कि हम लोग अपने इस एस्थेटिक लाइफ से बिल्कुल ऊब चुके हैं. ओके, वी आर टायर्ड ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. The Guru told that they are tired of this ascetic life. Ascetic means saintly life. And it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. और वे लोग चाहते थे कि गुरु ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो भी राजा और किंग मिनिस्टर जैसा थोड़ा लाइफ स्पेंड करें. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. और तब गुरु ने कहा कि और अब आप अपना वर्ड प्रॉमिस याद रखिए. आपने किया है तो पुट अस टू डेथ, लेकिन याद रखिए पहले मुझे आप एग्जीक्यूट करवाएंगे. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट. अब राजा बहुत सोच में पड़ गया. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. प्रॉब्लम क्या था? क्यों वो सोच में पड़ गया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और को वो ये किंगडम दे नेक्स्ट लाइफ में. ही नीडेड टाइम, और इसके लिए उसे टाइम चाहिए थी. सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर. इसलिए उसने कहा कि एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया जा रहा है नेक्स्ट डे तक, और उसने अपने मिनिस्टर्स के साथ क्या किया? बात की. इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ.
क्या बात की कि ये तो ठीक नहीं है कि हम अपना किंगडम किसी और को देंगे अगले जन्म में. लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स. एंड द किंग डिसाइडेड, कंसल्टेड विद मिनिस्टर एंड दे डिसाइडेड. देखो क्या डिसाइड किया, लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स, हम लोग स्टेक पे जाएंगे. एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग्स एंड मिनिस्टर्स अगेन. और फिर क्या होंगे, अगले जन्म में भी मैं राजा रहूँगा और तुम मिनिस्टर. होली मैन डो नॉट टेल लाइज. होली मैन मीन्स रेफर कर रहा है किसको, गुरु को. वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं. ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर इस चीज़ के लिए तैयार हुए. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ. और उसके बाद राजा ने क्या मैसेज भिजवा दिया, किसको, एग्जीक्यूशनर को, जो एग्जीक्यूट करता था पर्सन को. वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट. राजा ने एग्जीक्यूशनर को ये मैसेज भिजवाया कि हम लोग क्रिमिनल्स को आज रात में भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आए तुम उसको क्या करोगे, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन. सेकेंड मैन के साथ भी वैसा ही करना. दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करोगे. Whose message it was? The king. And to whom? Executioner. That night the king and his minister went secretly to the prison. ये लोग चुपचाप कहाँ गए, prison में. Where the disciple was imprisoned, जहाँ disciple को कैद करके रखा गया था. Released the guru and the disciple, दोनों को आज़ाद किया. Disguised themselves as the two, और खुद ये दोनों किसका डिस्गाइज्ड यानी किसका भेष में, किसके भेष में आ गया, अपने आप को हाइड कर लिया, किसके गेटअप में या भेष में आप बोल सकते हो, गुरु एंड डिसाइपल. एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, जैसा कि पहले से ही अरेंज था, विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. और जैसा लॉयल सर्वेंट्स को कुछ को रखा गया था जो कि उसके बहुत दिन पर किंग और मिनिस्टर्स विश्वास करते थे, उनके प्रेजेंस में इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया. नेक्स्ट, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. लेकिन जब सुबह में क्या हुआ, जब इनकी बॉडीज़, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, क्रोज और वल्चर्स को खाने के लिए फेंका गया, the people panicked to see because they recognized that they were dead and they were king and the minister. They saw before them the dead bodies of the king and the ministers. उन लोगों ने देखा किंग और मिनिस्टर के डेड बॉडीज़ को. The city was in confusion. सिटी पूरा confused हो गया. They were unable to understand why they were confusion. ये कैसे हुआ? How it happened? All night they mourned. उन लोगों ने शोक मनाया. एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और डिस्कस करने लगे कि इस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल. कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों ने अचानक से किसके बारे में सोचा, गुरु और डिसाइपल के बारे में. एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड. और उन दोनों को पकड़ लिया जब वो लोग वे लोग भागने वाले थे कि वो लोग इस किंगडम से चले जाएंगे. लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है. सेड समवन, किसी ने कहा. अदर्स एग्रीड, दूसरे भी उसकी बात से राजी हो गए, मतलब दूसरे लोग भी. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया गुरु से और डिसाइपल से कि उनका राजा और उनका मिनिस्टर बन जाए. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल. डिसाइपल को तो परसुएड करने के लिए, परसुएड यानी परसुएड वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मनाते हो. तो डिसाइपल को बनाने में तो उतना समय नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. लेकिन गुरु को तैयार, मतलब इस चीज़ के लिए परसुएड करने में टाइम लगा कि वो इस कंट्री को रूल करेंगे. लेकिन फाइनली ही एग्रीड ऑल्सो. अब देखो, they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. और तब फाइनली गुरु भी तैयार हो गए उस foolish kingdom king was rule the kingdom of the foolish king and silly ministers on the condition that they could change all the old laws. लेकिन उन लोगों ने एक कंडीशन रखा कि पहले से यहाँ जो भी लॉ चल रहे थे उसको वो चेंज करेंगे. फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से
नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उसके बाद से फिर सब कुछ चेंज हो गया, बट दिस टाइम फॉर बेटरमेंट, लेकिन इस बार अच्छे के लिए हुआ। और फिर से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और अब वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि डुडू, कोई भी चीज़ आपको 1 रुपये में नहीं मिलने वाले थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये भी बाकी जगहों की तरह हो गया। सो वी हैव सीन इन दिस लेसन दैट रियली only very wise people can manage the fool one. Okay, so this is the end of the lesson. Thanks